السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جوہر کی نماز کا طریقہ ہم نے بتایا تھا اور عصر کی نماز کا طریقہ بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد اب آتی ہے ٹائم بتانے والی، یعنی کہ مغرب کا وقت امام کے پیچھے ہم کیسے پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز جو 3 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، امام کے پیچھے ہم کیسے پڑھیں گے، وہ آج ہم طریقہ سیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی، تاکہ ہماری عوام جو نہیں جانتی کیسے نماز پڑھا جائے امام کے پیچھے مغرب کی، تاکہ وہ بھی دیکھ کے یہ چیز سیکھ لیں۔ جیسے اب تکبیر ہو گئی، امام صاحب مصلی پہ چلے گئے، اب ہم نیت کریں گے، یعنی کہ امام صاحب بھی نیت کریں گے جو ان کا طریقہ ہوگا، اور مقتدی کا جو طریقہ ہے وہ نیت ہم لوگ جانیں گے۔ امام صاحب تو جانتے کہتے ہیں ہمیں کیسے نیت کرے، کہاں نہ کرے۔ امام صاحب کل تقریباً بہت سی چیز جانتے ہیں، تو اور مقتدی نہیں جانتے۔ جیسے نیت کریں گے مقتدی، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض، وقت مغرب، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو کان کے لو تک لے کے جائیں گے، اور ہاتھ قبلہ کی طرف ہو، کان کے لو تک لے کے جائیں گے اور ٹچ کریں گے کان کے لو میں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ یہ 3 انگلی اوپر رہنی چاہیے، اور یہ انگوٹھا اور یہ کانی انگلی اس کو اچھے سے اسے پکڑ لیں گے، ناف کے نیچے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب بھی باندھیں گے، ہے نا، اور مقتدی بھی ہاتھ ایسے کہہ کے باندھیں گے، جیسے اللہ اکبر۔ امام صاحب نے بھی نیت باندھ لیا، اب مقتدی بھی نیت باندھ لیے، ہاتھ کو اچھے سے ناف کے نیچے باندھ لیے۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے آہستہ، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اس بات کا خیال رہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ لیے امام صاحب جو ہے، ہم مقتدی اب ثنا پڑھ کے خاموش رہیں گے، اب اس کے آگے کچھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ فرض نماز مغرب کی 3 رکعت جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے۔ فرض نماز کچھ بھی ہو، مقتدی کو چاہیے وہ ثنا پڑھ کے خاموش رہے، اب اس کے آگے کچھ نہ پڑھے گا۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، ہے نا، اور اس کے بعد امام صاحب کوئی سورہ ملائیں گے۔ جیسے امام صاحب شروع کریے۔ امام صاحب نے ثنا پڑھا، ہے نا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد امام صاحب نے ثنا پڑھا، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام صاحب نے ثنا پڑھا، اور مقتدی بھی ثنا پڑھ چکے تھے، امام صاحب نے ثنا پڑھ لیا، یہ مکمل ہو گئی بات، ہے نا۔ اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے، اب امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے۔ امام صاحب امام صاحب نے اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھا، اب اس کے بعد امام صاحب کوئی سورہ ملائیں گے، یعنی کہ سورہ بھی نہیں ملائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے۔ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد آہستہ آمین بولیں گے، مقتدی بھی بول دیے، امام صاحب بولے آمین۔ اگر کچھ بولے یا نہ بولو جو ہے یہ وہ نہیں ہے، دقت نہیں ہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن بول دینا چاہیے، بہتر ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں گے امام صاحب، مقتدی خاموش رہیں گے جب۔ اب اس امام صاحب بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے امام صاحب کوئی سورت ملائیں گے، یعنی کہ جیسے وہ امام صاحب جو ہے تبت یدا سورہ ملا لیے۔ امام صاحب قرأت شروع کیجیے۔ اب امام صاحب نے جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے، اب اس کے بعد جو ہے سورت بھی ملا لیے سورہ لہب کی۔ اب اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اور مقتدی بھی رکوع میں جائیں گے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر۔ اب مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے جو ہے
रुकू में चले जाएंगे, है ना। उसके बाद 3 मरतबा इमाम साहब भी पढ़ेंगे, 3 मरतबा मुख्तदी भी पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग भी पढ़ेंगे। 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो अब मुख्तदी कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। और उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के सजदे की तरफ जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर, अब मुख्तदी भी अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाए। अब हमें क्या पढ़ना है? 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जो है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के बैठेंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर, अब बैठ चुके, अब फिर एक सजदा और करेंगे। इमाम साहब भी करेंगे और हम भी करेंगे, जैसे अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम साहब अब अल्लाहु अकबर, अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब इमाम साहब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। अब हमने पहली शुरू वाली रकात में औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े थे, सना पढ़े थे। अब दूसरी की रकात में, तीसरी की रकात में जो है सना नहीं पढ़ेंगे और औज़ुबिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। जैसे इमाम साहब ने अब जो है शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इमाम साहब इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ दिए। अब इमाम साहब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे। इमाम साहब शुरू कीजिए। अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर करके रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इमाम साहब रब्बना वलकल हम्द, मुख्तदी रब्बना वलकल हम्द कहेंगे और इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे की तरफ जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम साहब अल्लाहु अकबर, फिर इमाम साहब एक सजदा और करेंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम साहब अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब कायदे में बैठ गए। अब हमें यहाँ औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह यानी कि तौज तस्मिया नहीं पढ़ना है। अब हमें डायरेक्ट जो है तशहूद पढ़ना है। जैसे इमाम साहब तशहूद यानी अत्तहियात पढ़िए। इमाम साहब ने जो है इमाम साहब ने तशहूद पढ़ा यानी कि अत्तहियात पढ़ा। अब जैसे पढ़ा ऐसे जाएगा, अब उंगली कहाँ उठाया जाएगा ये हम तरीका बता दे रहे हैं। जैसे पढ़ते हैं हम लोग अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली गिरा देना है, यानी कि अशहदु अल्ला इलाहा पे उठाना है उंगली और इल्लल्लाह पे गिरा देना है ना। ये बात जो है ताकि समझ में आ जाए उंगली कहाँ गिराना। बहुत लोग दाहिने बाएं मार देते हैं ऐसे से, और बहुत लोग उंगली उठाते हैं कहाँ गिराते हैं कहाँ, ये बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहती, इसलिए हम लोग जो है करके भी दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद ये कहते हुए तशहूद पढ़ चुके, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और मुख्तदी भी यानी कि हम लोग भी अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई
उसके बाद सूर्य नहीं मिलाएंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आप सिर्फ सूर्य फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी रकात में फ़र्ज में मगरिब में सूर्य नहीं मिलाना है। जैसे इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूर्य फातिहा पढ़िए। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा जो है जब भी पढ़ेंगे आप आहिस्ता में, यानी कि इतना तेज़ पढ़ें कि आप खुद सुन सकें, है ना। और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम। इमाम साहब अब इमाम साहब ने कहा समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अब मुक्तदी कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद इमाम साहब सजदे की तरफ जाएंगे। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला। इमाम साहब अल्लाहु अकबर। फिर इमाम साहब एक और सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला। अब इमाम साहब एक दिन बैठेंगे। अल्लाहु अकबर। अब ये हमारी तीसरी रकात हो चुकी है और हम लोग तशहुद में यानी कि अत्तहियात में बैठ चुके हैं। अब इसमें हमें 3 चीज़ पढ़ना है, तशहुद पढ़ना है और दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआ मासूरा पढ़ना है, तब जाके मैं सलाम फेरना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इशारा है बता दे रहा हूँ और स्क्रीन पे लगा भी दिया जाएगा क्या क्या पढ़ा जाएगा। फर्स्ट नंबर तशहुद अत्तहियात वाला, उसके बाद दरूद इब्राहिम, उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ के जो है तब जाके सलाम फेरा जाएगा। एक बात का ख्याल रहे, जब आप शहादत की उंगली उठाएंगे तशहुद में तो इल्लल्लाह पे उंगली फ़ौरन गिरा देना है, इस बात का ख़ास ख्याल रहे। उसके बाद इमाम साहब दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे और उसके बाद बाएं तरफ। इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले इमाम साहब दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे ये कांधा देखेंगे, उसके बाद फिर बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तो ये कांधा देखेंगे। बहुत लोग वही चीज़ें बार बार गड़बड़ी करते हैं। कुछ लोग देखते हैं कैसे झुक के कहाँ कितनी लंबी सफ लाग कई लोग आए हैं वो देखे लगते हैं, और कुछ लोग पीछे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पीछे देखे लगा थे। पीछे भी नहीं देखना चाहिए, ये सब गलत तरीका है, इसलिए हम लोग जो है बता रहे हैं अक्सर। और ये पैर जो है पैर वाला भी स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा ताकि आप हज़ार के समझ में भी आ जाए और हमारा सजदा रुकू कैसे होता है। अब सब कुछ वीडियो में नहीं समझ में आता ना, इसलिए जो है स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा। तो हम सजदा जब करते हैं तो हमारी पहले नाक टच होती है, तब माथा जब उठने लगेंगे इसका अक्ल वाला और मर्द जो है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अक्ल वाला हो और बालिग हो, उन पर ये इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है लोग नमाज सीख सकें। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं, उम्र उनकी जो है बीतती चली जाती है, नमाज का तरीका ही नहीं सीख पाते, क्या लेके जाएंगे मरने के बाद। कुछ इसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। हमने बहुत सा और वीडियो बनाया है ताकि आप ज़रा भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और वीडियो भी और बनाएंगे इस टॉपिक पर। चलिए ठीक है, हम लोग अब अगला वीडियो आपको पहुंचेगा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।